yesterday we were discussing about the tensile force in the string, okay, in the vertical circular motion. So you can just take a articulation of tensile force. Okay, let's first draw the diagram of the non-uniform circular motion in vertical plane. So this is that required path, which is circle in the form, followed by the particle. Let's see, the center of this this circular path is this, and particle at an instant of time is here, and this is O. I am taking again the same standard abbreviations, higher point and lower point. This point was middle point somewhere. This is M. So the weight force of the body always acts inward the center of the earth, downward means that, and this is the mg cos theta, the one component of the weight force of the body. This is the rest component, mg sin theta. Let's say at any instant this angle is theta, so this will also be theta. We have just understand about this in the last lecture. Yes, and this point is M, and this is R, and from here to there, let's say this height attained by the particle at this point is just h. This is h, so this is complete R, this is R minus h. No, this is small h. This is small h? Yeah, this is small h. Now, but more important thing what we did not discuss in the last lecture, that is, we take the height at this point as 0. But height is always taken 0 on the ground of the earth. It means that this point is on the ground. We always take height as 0 on the surface, exactly on the surface of the earth. But we are taking the height at this point also as 0, and it is just uplift from the surface of the earth. Yes, it is uplift. Actually, the earth's surface is regarded at here. It means that the lower point is just slightly upward from the surface of the earth. It means that the body should be able to move with the circular path, means that this point should not be coincide. Okay, the body only and only have to move in the circular motion. That's why we take L and the ground as just at a smaller height approximately. So the difference between this height is just negligible. Okay, so that's why we take at this point the height as 0. So the tensile force in the string will be in this direction. So expression was like this: tensile force in the string. So from the diagram you can just see T minus mg cos theta, because mg cos theta is subtracted from the T according to diagram, and that will give you the required centripetal force. This is mv square over r. If we are interested to find the value of T, you can take this factor into the RHS, and that will be mg cos theta plus mb square over r. M is just common, this is G. What is the value of cos theta? Base over hypotenuse, R minus H over R. So this is R minus H over R, and plus M has been taken as common, and the value of V square is U square minus 2GH. So the value of V square is initial velocity, and it was at here, and divided by R. So we can just rearrange the terms. So also you can take 1 over R as common. Complete common factor out of the bracket is M over R, and this is GR minus GH and plus U square minus 2GH. Good. This is M over R. This is U square, and minus GH and minus 2GH give you minus 3GH, and this is GR of positive.
So this is the required formula for the tension force in the string. At any point except these 2 points. Good. A particle or body which is circulating around this circle is somewhere from here to there or from there to here. So the tension force in any situation will be calculated by this formula. It means that tension force depends upon the H as well as mass as well as gravity, acceleration due to gravity and initial velocity. The main factor upon which tension force depends is what? U, because the power of U is just greater. It means that if you give more velocity or more speed initially to the body, then it will have it will lead to the greater tension in the string. You can just feel this, you can just experience this force also if you move a body very fastly in the circular motion. So thread may be broken. Thread may be broken. Why? Because U is greater, then tension will also be greater. If tension is greater and the thread is just of lower quality material, then thread may be broken. Other factor also depend, but U has the greater contribution in the tension force. Good. Now we have the 2 cases for the tension force to find. So tension force, what will be the tension force at this point and at this point? Okay. So what the factor which is presented in the tension force will be changed when we take the tension force at L? Tell me, U will change or not? No. GR will change? No. 3GH, H will change. It means that at this point height will be 0. So you can just write here tension at lowest point is just TL. Good. And at this point height is just 0. Okay. So expression will lead in this form U square plus GR, and this factor is 0 due to the H. So the tension force at the lower point is just M over R and U square plus GR. Okay. Now let's, yes. Where? कहाँ? कहाँ पर? यहाँ? नो GR था ना वो आपके पास, यहाँ पर ना, यहाँ देखो GR यहाँ से आया, GR यहाँ से है. T has no role, T has no role in this. Okay? T का कोई रोल नहीं है. T always takes place when you are finding the displacement. Yes. Good. So also the velocity in the vertical plane of circular motion does not depend upon time. Yes, because in the last formula what we have found it, that was V square equals to U square minus 2GH. No role for T was there. Good. So now we can just take the same view for the higher point tension. So the higher point tension will be, so make this formula for the higher point. So that will be, let's say the T at the S is TH. So height will be what? Height will be from here, this is R and this is again R. This will be 2R. So the formula will like this, M over R and U square plus GR and minus 3 into G into 2R. Good. So what is the बातें नहीं? What is the final formula? This is 3 to just 6 GR. 6 GR, this is positive GR. So this is minus 5 GR. Minus 5 GR. So this is M over R and U square minus 5GR. So these are the individual values of higher point tension and lowest point tensions. Yes? Yes, बिल्कुल. Yes, it's mean that the radius should be taken from the ground. Radius should be taken from the ground to the center, because this point and the point on ground are just coinciding. This is the ideal situation, but they are not in actual.
मीन्स दैट आपकी सर्कुलर मोशन जस्ट टच करते हुए चले इतने नीचे कि क्या ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? सपोज दैट ये पॉसिबल नहीं है, आप कुछ हाइट पे कर रहे हो, बिल्डिंग पे खड़े होकर कर रहे हो, सो एच यहाँ पर क्या होगा, जीरो नहीं होगा। सो आपको करना क्या होगा, यू शुड बी एडेड वॉट एच इंटू दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सपोज करो यहाँ से आता कुछ हाइट है, ठीक है, तो इस बार आपके पास क्या होगा, आर में वो क्या ऐड करना पड़ेगा, वो हाइट ऐड करना पड़ेगा। दैट विल बी द अनदर सिचुएशन। ओके, if the question may be out of that situation, we will deal that. So these are the two formula. Now the important point is also here, you can just take the difference between these two tensions. Which one tension is just greater? Which one tension is greater than the other? TL or TH? Or TH? If body is here, tension force will be what? And for this point, tension force will be greater at this point, because velocity is just greater at this point and velocity is just lesser at this point, so this will lead to the lesser tension. So it's mean that if we are finding the difference between the tension, then we should be subtracted from the lower tension, means that this is the lower tension from the higher tension. Okay, so difference in the tensions. You continue to note down the article. Difference in the tensions of lowest and highest point. So this will be like TL minus TH. Now look at the board. There is an important phenomena here. TL minus TH. Just let me write the value of m over r u square plus gr in the bracket, and minus this is m over r u square minus 5gr. So m over r is just common. Good. This is u square plus gr minus u square negative positive 5gr. This is cancel out. Rest is m over r and 5gr and gr makes 6gr. R is just cancel out. What is the remained factor? This is 6 mg. So is this interesting term or not? Mg times of 6 or 6 times of mg. It's mean that the difference between the tensions at the lowest and higher point is the 6 times to the weight of the body. बात समझ में आई है पहले? इसका मतलब यहाँ पे अगर आपको जितनी फोर्स यहाँ फील हो रही है ना, और जो यहाँ फील होगी, यहाँ पर 6 गुनी ज़्यादा फील होगी। कहाँ से? यहाँ से। अब सुनो इस वाली बात को ध्यान से, जब हम ये मोशन कराते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो इस टाइम पर यहाँ देखो सभी, अगर मैं मोशन करा रहा हूँ तो इस टाइम पे यहाँ पे जो मुझे फोर्स फील हो रही है ना, दैट इज़ 6 टाइम्स टू दी फोर्स यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आपका हाथ सपोज करो, यहाँ देखो बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, अगर ऊपर टाइम पर मेरा हाथ ऊपर को 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है, तो नीचे कितना उठ रहेगा? 6 सेंटीमीटर। 6 टाइम्स फोर्स क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। तो ये फैक्टर इंटरेस्टिंग है ना, कि नीचे जाने पर आपकी फोर्स कितनी बढ़ गई है टेंशन की? 6 गुनी। ठीक है, बात समझ में? और सुनो दूसरी बात और, टेंशन फोर्स अंदर की ओर लगती है, तो यहाँ की ओर 6 गुना फोर्स लगेगी। बात समझ में आई है? किसके कंपैरिजन में? वहाँ ही कंपेयर। तो अब यहाँ पे आपको हल्का फील होता है, इसलिए जब बॉडी ऊपर आती है ना, एट बॉडी रीचेस एट द हाईएस्ट पॉइंट, यू विल एक्सपीरियंस अ वेरी नेग्लिजिबल फोर्स एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। हाथ अगर हटाएं, कहाँ पर? वो है आपके पास टेंजेंशियल फोर्स है, वो जिसकी आप बात कर रहे हो हाथ पर लगेगी, वो टेंजेंशियल फोर्स। हम बात करें टेंशन फोर्स की। टेंजेंशियल फोर्स क्या? जो आपकी चोट लगाएगी हाथ पे, वो अलग है, उसको ही पढ़ना है अभी। वो भी आपका, वो जब आप पढ़ोगे इम्पल्स एंड मोमेंटम, तब पढ़ेंगे हम क्या है, वो जो आपकी हैमरिंग वगैरह होगी चोट वाली। सो यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस एक्सप्रेशन। First note down this expression, and then this one, and then this one. This tension at highest point, TH.
हो गया? These individual formulas you should remember in your mind at all times 6mg, क्योंकि हमेशा आपको पता है अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द पैटर्न ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू CBSE हैज़ बीन चेंज्ड. MCQ based questions are frequently asked. सो इस बार आपके MCQ क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कौन से वालों की. मीन्स दैट in MCQ something question will be there and there may be the 4 options and the question may be type of what is the value of difference between the tensions higher or lower or higher in the vertical circle motion. वो आपको देगा वहाँ पे 6mg 5mg, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप. क्यों? क्योंकि 5mg भी आएगा कहीं ना कहीं आएगा भी आगे एक्सप्रेशंस में. हाँ, एक का टेंशन हायर पॉइंट का टेंशन अगर ठीक है, लोअर पॉइंट का टेंशन कितना होगा. तो आपको उस पता होना चाहिए ना डिफरेंस का पहले, तभी तो बताओगे. तो डिफरेंस आप 6mg वाला ध्यान रखना ज़रा, ठीक है. 6mg अपने माइंड में रखो. ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली बताने के लिए रटनी पड़ती है. हमेशा ये पूरा ये एक्सप्रेशन काम नहीं करेगा कि नहीं अभी बता रहे हैं हम 2 मिनट में और इतने में तो ठीक है पूरा टेस्ट ही खत्म हो जाएगा. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप कॉन्स्टेंट्स रटने पड़ते हैं. साइंटिस्ट रटते हैं, सब टीचर्स रटते हैं, आप भी रटोगे. कॉन्स्टेंट्स तो रटने ही पड़ते हैं ना. Even if you should know the derivation of all the constants from where they are emerged. ठीक है. So you can just write in the language hence the tension force difference, hence the difference between the tension force, difference between the tension force at lower or lowest, what you can get, at lower and higher point, lower and higher point is 6 times to the weight of the body. mg is just weight of the body. So what is the general formula of tension? m over r u square minus gr minus 2gh. Yes. Now next sketch, you write minimum speed at projection, of body at lower point for looping the loop. What exactly is the meaning by looping the loop? It's mean that, look at the diagram. For looping the loop, so we are concerning the velocity at this point, lower point, not at that point. So what should be the minimum velocity possessed by the circulating particle at this point, so that the particle should be able to go there and also able to return at this point, means that to complete one loop. Okay, so what should be the value of the speed of the particle possessed at this situation, so that the particle is able to complete one. This article can also be written as to complete one loop only, merely to complete one loop. Okay, so what do you think about this point? What should be the velocity? What should be the velocity? What is the effect on the other factors? How we can generate this velocity? बोलो. कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम लूपिंग के लूप के लिए वेलोसिटी? इस पॉइंट पर जो आपका क्या क्या फैक्टर्स पे इफेक्ट कैसे कैसे पड़ता है,
इस फैक्टर पे जो इफेक्ट पड़ता है वो कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है ये बताओ। हाँ अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स एट दिस पॉइंट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेंशन? व्हाट इज द इनिशियल स्पीड? व्हाट इज द इनिशियल स्पीड एट दिस पॉइंट? दैट इज v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh. Good. So if I am interested to find the minimum velocity at this point, so what should be that according to this formula? What is v here? What is v here? At what point? At the lower point u is there. U is the velocity at this point and v is the velocity at any one point except this or that. Okay. So what should I do to find the minimum velocity at this point? Okay, tell me what is the value of tension force at this point? At this point, what is the value of tension force? T. T is at this point, what was the T? T equals to m over r and how much? U square minus gr and how much? 2gh. यही फॉर्मूला था ना, हमने h को यहाँ पे हटा दिया था तो आपके पास ये हो गया था यहाँ पे. गुड. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स एट हायर पॉइंट? देखो ध्यान से, m ओवर r दिस इज u स्क्वायर माइनस दिस विल बी 2 3 जा 6. वहाँ पर आपके पास 6 हुआ था ना तो 6 हो जाएगा. दिस इज 6gh, सॉरी gr. अब यहाँ देखो सभी, ध्यान सुनो, चलो वो कर देंगे अभी. यहाँ पर ऊपर ठीक, और यहाँ ये माइनस में है. ठीक है, अब यहाँ देखो सभी, यहाँ देखो व्हाट विल हैपन विद द वेलोसिटी. यहाँ देखो सभी, इस जगह अपनी बात सुनो, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा इस पॉइंट पर, क्या हुआ देखो जरा एक मिनट. आप यहाँ से चले जाओ, गेट खोल के चले जाओ यहाँ से. सो यहाँ देखो जल्दी से एक बात, जब पार्टिकल यहाँ से आएगा तो देखो ध्यान से, इसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि इस पॉइंट को ये क्या काम करे, टच कर सके. अब इस वाले पॉइंट पर टेंशन फोर्स अगर जीरो हो गई तो ध्यान सुनना है, अगर टेंशन फोर्स जीरो हो गई तो पार्टिकल यहाँ से क्या होगा, सीधा गिर जाएगा ना. हमें यही नहीं करना, लेकिन टेंशन फोर्स इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी कि पार्टिकल हमेशा मूव करता रहे. ये बहुत ध्यान सुनो, यहाँ से कैसे निकालेंगे वेलोसिटी. एक्चुअली यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम तब होगी जब वो एटलीस्ट एक ही लूप बना पाए, यही तो हम कह रहे हैं. तो इसके लिए टेंशन फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. यहाँ देखो, अगर यहाँ पे टेंशन फोर्स बहुत कम है और इतनी कम है कि ओनली एंड ओनली ये बॉडी यहाँ से पास हो जाती है, ज़्यादा नहीं, क्या ज़्यादा के लिए तो बहुत सारे चक्कर काट सकती है उतने में. टेंशन फोर्स इतनी कम होनी चाहिए कि कम से कम होनी चाहिए कि बस पार्टिकल क्या हो, यहाँ पे स्लैकेंड होकर के थ्रेड नीचे न गिर जाए. तो यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है वो क्या होनी चाहिए, जस्ट क्या, ग्रेटर देन जीरो ना हो, लेकिन जीरो से क्या हो, थोड़ी सी ज़्यादा. सो टी शुड बी ग्रेटर देन जीरो. और फॉर क्रिटिकल सिचुएशन अगर ये बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब वो भी तो क्या होगी, मिनिमम वेलोसिटी के ले सकते हो. बट जनरल सिचुएशन क्या है, टी क्या होना चाहिए, बड़ा जीरो से. अगर जीरो हो गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा. मतलब देखो ध्यान से चीज़ें एकदम से तो नहीं गिरेगा, क्योंकि इसके पास इनर्शिया है मोशन की, थोड़ा आगे जाएगा तब गिरेगा. ठीक है, और हो सकता है लूप बना ले, इसलिए हम क्या काम करते हैं, दोनों सिचुएशन लेकर के चलते हैं. अगर जीरो के बराबर हो गया तो एकदम से थोड़ी गिरेगा, मोशन एकदम से जीरो थोड़ी हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो थोड़ी हो जाएगी. तो इसलिए क्या काम करना है आपको, टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. व्हाट टाइप ऑफ टी, हायर पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स थी. सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर हायर पॉइंट टेंशन, दिस वन. सो दिस फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन जीरो. So I can write this factor as greater than 0. So this will be TH greater than 0. So this factor will be m over r and this is u square minus 5gr. Sorry, yes, this is 5gr. Complete factor 5gr है, प्लस था यहाँ पे gr पे. Yes. So this is minus 5gr. अब यहाँ देखो, this should be greater than 0. मैथमेटिकली ये फैक्टर को आप हटा सकते हो. कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, ओनली यू स्क्वायर माइनस 5gr एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और यू स्क्वायर इज जस्ट ग्रेटर देन एंड 0 इक्वल्स टू व्हाट, 5gr एंड यू शुड बी
5gr square root. So this is that minimum velocity or speed possessed by the particle for looping the loop. Okay, so 5gr का स्क्वायर रूट के बराबर स्पीड होनी चाहिए पार्टिकल में, ये मिनिमम स्पीड है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो u की वैल्यू जस्ट इससे क्या हो, या तो इसके बराबर हो या इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी। अगर इसके कम हो गई तो क्या होगा बताओ, पार्टिकल वहाँ तक जाएगा ही नहीं, पहले ही आ जाएगा। तो हमें क्या काम की शुरुआत कहाँ से करनी है, मिनिमम वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है, वो इतनी बढ़ जाए, वो मतलब वेलोसिटी को बढ़ाना है, वो इतनी बढ़ जाए कि वो लूप को केवल पार कर ले। ये नहीं कि बहुत 2-3 चक्कर काट रहे, नो। अगर आप हायर से लोगे तो हायर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो क्या काम करना है आपको, इस वैल्यू से बड़ी या इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये स्पीड धीरे धीरे यहाँ पे जाते जाते क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर जाते जाते कितनी हो गई है, इसका मतलब वेलोसिटी हायर पॉइंट पर कितनी होती है वो और निकालना है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी और स्पीड, व्हाट यू कैन से वेलोसिटी एट हायर पॉइंट, हायर पॉइंट। सो लेट्स से देयर इज समथिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, लेट्स से v, कैपिटल V, नॉट स्मॉल v, बिकॉज v ऑलरेडी हमने ले लिया है। सो वी कैन जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ v from first equation will not be used, second equation will not be used due to because we are not having the value of time, and first and second equation include time, that's why third equation will be used. थर्ड में t का रोल नहीं है ना, t को एलिमिनेट करके फर्स्ट और सेकंड को तभी थर्ड आती है। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, so that will be v square equals u square plus or minus because you are going upward against the gravity, minus 2g h, 2g h, and for this point h will be 2r. Okay, so this will be 2r. So v is the velocity at the higher point. So v square equals what is the value of u square for the minimum condition, this one मिनिमम कंडीशन के लिए देख रहे हैं ना। सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ यू स्क्वायर एज 5gr एंड दिस इज 2 2 जा 4gr. व्हाट इज द रेस्ट फैक्टर, 5gr माइनस दिस इज gr and this is going to equal v square. So what is the value of v, this is gr. So this is the minimum velocity or speed of the body एट दिस पॉइंट। इसका मतलब जो √5gr वैल्यू थी ना, वो धीरे धीरे घट करके कितने हो जाती है, यहाँ पर gr हो जाती है। कितने टाइम्स घट गई यहाँ से, √5 टाइम्स, ठीक है, नोट डाउन। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो लेट दिस इज v, नाउ आप उतारो इसे। अब कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है, √5gr दैट वाज 6mg, गुड। और ये है आपके पास √gr, अभी और भी है प्रेजेंट होने के लिए, ठीक। सो ये फैक्टर्स आप ज़रा ध्यान रखना, अभी कन्फ्यूज़न थोड़ी बढ़ेगा। कन्फ्यूज़न तब बढ़ेगा जिस दिन एग्ज़ाम दोगे आप, उस दिन एक चैप्टर नहीं होगा, उस दिन तो सब होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, एंड प्रेशर और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ 6mg को याद रखना। इट इज़ more complex and difficult. हो गया, समझ में आया ये पॉइंट, चलिए आगे चलते हैं अब इसमें। सो दिस इज़ डन, नाउ स्पेशल केसेस। सो स्केच डालो स्पेशल
special cases. So first special case, the condition for oscillation, yes. So आप डाल सकते हो condition for oscillation, condition for oscillation, special case में first condition for oscillation. So what is the general meant by oscillation? Oscillation और circular motion में क्या difference है? Oscillation means that if a body moves to and fro around a point, it is said to be oscillation. And what is a periodic motion? Oscillation, periodic motion, what are the different word? Periodic motion थोड़ा बड़ा ब्रॉड लेवल जो ऑक्सीलेशन को भी कंप्राइज करता है. पैडिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी मोशन जो एक सर्टेन टाइम बाद, एक सर्टेन पीरियड बाद अपने आप को क्या करे, रिपीट करे. सो ऑक्सीलेशन में, ऑक्सीलेशन पैडिक मोशन में यही है. पैडिक मोशन में आपका कंप्लीट साइकिल भी बन सकता है, नहीं ऑक्सीलेशन में ऑक्सीलेशन ही बन सकता है. डिफरेंस क्या है दोनों में बोलो? पैडिक मोशन में सारी मोशंस हैं जिनमें क्या हो रहा है, सर्कल बने या ऐसे हो, लेकिन ऑक्सीलेशन क्या होता है, केवल यही वाला. ठीक है, मतलब एक पॉइंट के टू एंड फ्रो. ठीक है. सो ऑक्सीलेशन कंडीशन के लिए देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे. The pronunciation is just said as oscillation, मतलब written as oscillation and pronounced as what? Oscillation. Oscillation means that S is silent. Oscillations and means that written as oscillation. So इसमें confusion नहीं होना. So the condition for oscillation will be, okay, मुझे ये बताओ what should be the velocity or speed attained by the particle to go here? That was square root of mg, minimum velocity. So oscillation के लिए यहाँ देखो सभी, velocity इतनी ना हो पार्टिकल में कि ये यहाँ से पार निकल जाए, उससे क्या होना चाहिए, कम. 5G से तो कम होनी ही चाहिए. और इसका मतलब ये भी है ऑक्सीलेशन के लिए आपकी वेलोसिटी इस पार्टिकल से इस पार्टिकल या इस पोजीशन पे आने से पहले क्या होनी चाहिए, 0. If particle is gradually approaching towards this point and at any point between L and H over this path, the speed is 0. Then particle will no longer to able to reach at this point and will stop at that particular point. And due to gravity, the particle will follow its initial path. It's mean that in order to oscillate a particle, its velocity must be 0 before reaching at this point. Okay, but for oscillation, the tension force in the thread should not be 0. If velocity becomes 0 at any point between L and H, the particle will return to its initial position and will move in this way, and this is said to be as oscillation. And we have to find the same situation. It's mean that velocity must be 0 before H point, but tension force should not be 0 before the velocity is 0. अगर velocity 0 हो गई है, ठीक है, और टेंशन फोर्स अभी कुछ है पार्टिकल में, थ्रेड में, तो क्या होगा, ये पार्टिकल देखो इस तरीके से यहाँ पर इसको ऑक्सीलेट कराएगा. जैसे यहाँ देखो आप इस चीज़ को, कंडीशन को सपोज करो मैं इसको मिनिमम वेलोसिटी दे रहा हूँ. आप देखना इस चीज़ को, मैं धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ, आप देखना खुद ही. अभी देखिए टेंशन फोर्स भी अभी इसमें कुछ है, अभी भी ये ऑक्सीलेट कर रही है. और एक इम्पोर्टेंट थिंग और, अगर पार्टिकल सेमी सर्कल से ऊपर चला जाए ना, तो इसमें स्लैकनिंग होने लगती है. स्लैकनिंग कब तक लो आपकी, मतलब कम होती है जब तक लो आपकी हाइट, मतलब ये सेमी सर्कल ना बनाए. ठीक है, तो अगर जैसे ये पार्टिकल यहाँ तक है तो स्लैकनिंग अभी नहीं होगी, यहाँ तक भी नहीं होगी अभी. जैसे सेमी सर्कल से ऊपर जाएगा ना तो स्लैकिंग स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, अब मैं इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाऊंगा तो स्लैकनिंग उतनी ज़्यादा हो जाएगी. यू पे डिपेंड करती है टेंशन फोर्स. तो यहाँ देखो ध्यान से, अब क्या सभी देखो यहाँ से, अगर पार्टिकल में जो वेलोसिटी है वो यहाँ की 0 हो गई है, 0 होगी तो रुक गया है, तो क्या होगा बॉडी. और सुनो ध्यान से,
इसको धागे को ध्यान से देखना है अभी आपको। यहाँ पे जीरो है वेलोसिटी मूव करते टाइम पे, तो पार्टिकल क्या होगा ऐसे। लेकिन अभी देखो थोड़ा सा स्लैकनिंग हो गई, आप इसको नेग्लिजिबल मान के चलना, तो ऑक्सीलेट करना शुरू हो गया। इसका मतलब यहाँ से आने से पहले इसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी तो इसके पास कुछ है, लेकिन सुनिएगा पहले, वेलोसिटी तो इसके पास है कुछ, लेकिन थ्रीड क्या हो गई है, स्लैकन, तो पार्टिकल नीचे जाएगा, सीधा नीचे गिरेगा। और ये क्या काम करेगा, सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता फिर तो, क्योंकि सर्कुलर मोशन के रेडियस कौन चाहिए थी, फिक्स। स्लैकनिंग करने के लिए क्या होगी, रेडियस कम, ये शुरू में हमने देखा था। इसका मतलब सुनो, ऑक्सीलेशन के लिए वेलोसिटी पहले जीरो होनी चाहिए, टेंशन फोर्स जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर टेंशन फोर्स पहले जीरो हो गई है और वेलोसिटी अभी कुछ है, तो पार्टिकल अब ऐसे जा सकता है, दोबारा कैसे आएगा, नो। तो वेलोसिटी विल बी जीरो बिफोर रीचिंग दी हायर पॉइंट। कहाँ पर, यहाँ से हायर पॉइंट से, हाँ यस, यहाँ मान लीजिएगा, हाँ। अगर वेलोसिटी यहाँ से छोड़े, पहली बात देखो यहाँ पर इस वाली हाइट पे कभी भी आपकी टेंशन फोर्स हो नहीं सकती है। इस तरीके से देखो कैसा आ रहा है, मैं रियल दिखा रहा हूँ आपको कैसा हो रहा है ये। अभी जब आप स्लाइस ये स्टेबल है तो हो जाएगा, इस तरीके से देखो आप। पहले तो मोशन स्टार्ट होती है यहाँ से, इस जगह से इनिशियल पॉइंट, तो यहीं से आपको देखना है। चलते चलते यहाँ से कैसे जीरो हो जाएगी वेलोसिटी एकदम से, या तो धागा टूट जाए, यहाँ से तो जीरो तभी होगी ना, टेंशन फोर्स, धागा टूट जाए। हमें धागा तोड़ना ही नहीं है, वरना सर्कुलर मोशन ही क्या एग्जिस्ट करेगी फिर। तो आपको जो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ानी है वो यहाँ से बढ़ानी है। अब आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, वो ध्यान रखना है, सुनो। तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी जीरो हुई ना, यहाँ पर हुई है, कहीं भी हो सकती है, यहाँ हुई है, और कुछ हाइट पे हुई होगी, नीचे से कुछ हाइट होगी, तो लेट से वो हाइट आपकी h1 है, ठीक है। सो h1 हाइट पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल पाथ फॉलोड बाई इट। सो यहाँ पे अभी आपको लिखना नहीं है कुछ, पहले देख लीजिएगा। सो वेलोसिटी विल बी जीरो, फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। सो v स्क्वायर इक्वल्स u square minus 2gh. This is the third equation, yes. So if height is h1 at that particular point where velocity becomes zero, which one velocity, final velocity, not initial, initial तो कुछ ना कुछ होगा। So initial velocity क्या होगा इस point पे, zero, u square minus 2g, let's say h1, what is the value of height, u square over 2g. It's mean that the height at which the velocity will become जीरो इज दी यू स्क्वायर ओवर 2g, ठीक है। अब टेंशन फोर्स के साथ और देखते हैं, बिकॉज इसकी जो ऑक्सीलेशन है टेंशन फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर टेंशन फोर्स नहीं होगी तो ऑक्सीलेशन करेगा ही नहीं है। आप खुद बताओ, धागा अगर ऐसे है तो टेंशन कैसे हो जाएगा ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन का क्या होना चाहिए इसमें, कुछ टेंशन फोर्स। अब हम ये मानते हैं, देखते हैं टेंशन फोर्स कहाँ जीरो होगी। अब ये बात सुनो, अगर आपने वेलोसिटी बहुत कम दी है पार्टिकल को, तो टेंशन फोर्स तो जीरो हो जाएगी ना। आपने बहुत कम वेलोसिटी दी है, ये देखो अभी आप हो गया ना, देखो इसमें स्लैकनिंग हो गई है। तो अगर वेलोसिटी बहुत कम है तो पार्टिकल में की मोशन में स्लैकनिंग हो जाएगी धागे के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो स्लैकनिंग हो रही है, यहाँ देखो, यहाँ आया पार्टिकल, ये यहाँ आते हुए आते इसमें क्या हो गया, वेलोसिटी से पहले इसमें क्या स्लैकनिंग हो गई है। तो स्लैकनिंग होने पर टेंशन फोर्स जीरो, और टेंशन फोर्स जीरो होने पर देखो क्या मिलेगा आपको। सो एट हाइट, हाँ हम कंसिडर कर रहे हैं, लेट एट हाइट h2 टेंशन इज जीरो। सो टेंशन जीरो होने के लिए t को जीरो रख दीजिएगा आप। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ t, जनरल फॉर्मूला ऑफ t, m ओवर r इंटू यू स्क्वायर प्लस जी आर एंड माइनस 2gh, and we have regarded tensor force 0 at height h2. This factor is क्या है, 0 है। Okay, now we can just find the value of h2. So what is the value of h2? m over r can be taken as 0. So ये आपके पास हो जाएगा 2gh2 इक्वल्स, यहाँ आगे पहुँचेगा u स्क्वायर प्लस जी आर इक्वल्स 2gh2. What is the height? h2 इक्वल्स u स्क्वायर प्लस जी आर ओवर 2g. This is that height at which tension force will be 0. Now important thing अब है h1 एंड h2 में रिलेशन क्या होना चाहिए ऑक्सीलेशन के लिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग।
इसके लिए बहुत ध्यान से देखो, ये उतार लेना अभी एक साथ, अभी उतारने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। अभी नहीं उतारना है, मुझे लिखवाना है बहुत सारी चीज़ें बीच में भी, वरना ऐसे उतारोगे तो फिर मैथमेटिकली रह जाएगा इंटरप्रिटेशन। सो देखो ध्यान से अब मुझे ये बताइएगा, ऑक्स बहुत ध्यान से सभी, ऑक्सीलेशन के लिए वेलोसिटी पहले जीरो हो जाए टेंशन फोर्स से, या टेंशन फोर्स पहले जीरो हो जाए वेलोसिटी से? टेंशन फोर्स। अगर टेंशन फोर्स से जीरो हो गई है तो पहली बात तो सर्कुलर मोशन रहेगी नहीं, वो हमें सर्कुलर मोशन रिटेन करनी है। सर्कुलर पाथ भी तो क्या काम करेगा, ऑक्सीलेट करेगा ना। ये कार्बन पाथ है, आर्क है ये वाली, ऐसे करके। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी आपकी जीरो होनी चाहिए, टेंशन फोर्स जीरो नहीं होनी चाहिए। बाद में जीरो हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसका मतलब वेलोसिटी वाली जीरो होनी चाहिए पहले। अगर वेलोसिटी पहले जीरो हो गई है तो हाइट S1 S2 में क्या रिलेशन होगा, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी? वेलोसिटी पहले जीरो कर दी हमने, सो जीरो वेलोसिटी के लिए आपकी हाइट ये थी, तो ये हाइट यहाँ देखो, लेट से हाइट आप यहाँ तक लेकर के आओगे पार्टिकल को, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई है, जीरो। तो टेंशन फोर्स क्या होनी चाहिए इससे थोड़ी पीछे, या यहाँ होनी चाहिए टेंशन फोर्स? पीछे होनी चाहिए ना। इसका मतलब कौन सी हाइट ज़्यादा हो गई है, टेंशन फोर्स लेट से यहाँ पर हुई है आपकी जीरो। अगर यहाँ पे टेंशन फोर्स जीरो हो जाती है ना तो पार्टिकल स्लैकन हो जाता धागे के साथ। इसका मतलब क्या, टेंशन फोर्स बाद में होनी चाहिए जीरो, पहले कौन होनी चाहिए, वेलोसिटी। तो हाइट किसकी ज़्यादा हो गई है, वेलोसिटी जीरो होने वाली कंडीशन की। इसका मतलब ये वाली हाइट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। सो H1 शुड बी ग्रेटर देन 2H2। ठीक है। अगर इक्वल हुआ, एक ही टाइम पे क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो, एक ही टाइम पे क्या हुआ, टेंशन फोर्स जीरो, सो क्या होगा, बोलो, वेलोसिटी यस नीचे गिर जाएगी वो। ठीक है, नीचे गिरेगी वो, यस। ठीक है। और इसमें आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि, और जैसे यहाँ देख लीजिए कैसे वेलोसिटी भी यहाँ पे आते जीरो हो गई है, ऐसे भी हो गया धागा, तो सीधी क्या जाएगी, या तो ये उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी उस मोमेंट पर, या अगर इसकी वेलोसिटी जब जीरो होगी तो ऊपर तो जाएगी नहीं, कहाँ जाएगी, सीधी है, वर्टिकली परपेंडिकुलरली गिरेगी नीचे की ओर। ठीक है, यस। तो क्या काम करेगा, इसके लिए कंडीशन निकालो, H1 को रखो ग्रेटर किसके कंडीशन में, H2 में, तो दिस विल बी U स्क्वायर ओवर 2G इक्वल ग्रेटर देन 2U स्क्वायर प्लस GR ओवर, दिस वॉज 3G, यस, आई थिंक दिस वॉज 3G। देखो जरा फॉर्मूले में, दिस वॉज 3G, यस, दिस वॉज 3G, this was 3G, so this is 3G here. These just cancel. Okay, inequations are generally solved as the equations. So आप ये मत सोचो यहाँ पे ग्रेटर देन, आप इक्वली मान के चलिएगा सॉल्व करने के लिए। This cancel by G, 3 will be multiply in the U square, 2 will be multiply in the U, this is 2U square and this is 2GR. So this will be U square and greater than 2GR, and U is just ग्रेटर देन टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GR। इसका मतलब कि ऑक्सीलेशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 2GR के अंडर रूट से। अगर आप ऑक्सीलेशन कराना चाह रहे हो तो इतनी वेलोसिटी जरूर दे दो, कितनी वेलोसिटी जरूर दे दो आप, 2GR से ज़्यादा। अच्छा, अगर इसके इक्वल भी दे दी तब भी क्या होगा, कंडीशन पास करेगी नहीं। अगर इस तो हम इसमें इक्वल भी लेकर के चलते हैं सिचुएशन, ये आपको मैंने पहले बताया था उसमें कैसे करते हैं। तो अगर इक्वल हो गई है, अंडर रूट 2GR के बराबर है, तो बॉडी विल स्टार्ट टू ऑक्सीलेट एंड नॉट बी गो एट द मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है। सो ये कंडीशन कौन सी थी, जब आपकी बॉडी ऑक्सीलेट करेगी। अगर आपकी इसका उल्टा हो जाए, टेंशन फोर्स बिकम्स ज़ीरो बिफोर वेलोसिटी और स्पीड बिकम्स ज़ीरो, सो क्या होगा, इट विल नो लॉन्गर बी इन दी ऑक्सीलेशन बट इट विल रिटर्न इन दी पैराबोलिक पाथ। कैसे, देखो ध्यान से, सपोज करो इसकी यहाँ पर वेलोसिटी तो इसमें कुछ है, जाना चाह रही है, लेकिन इसने साथ छोड़ दिया, धागे ने तो क्या होगी, जा रही थी वापस आ जाएगी अब ऐसे कर। ठीक है। अगर H1 H2 के इक्वल होगी तो परपेंडिकुलरली गिरेगा, अभी हमने देखा था। अगर H1 H2 इक्वल हो गए हैं, व्हाट विल हैपन, H1 H2 इक्वल्स का मतलब क्या हो चुका है, वेलोसिटी भी जीरो हो गई है और टेंशन फोर्स भी जीरो हो गई है, या नहीं, वो इसके साथ है। मेरी बात सुनो, अगर ये दोनों इक्वल होती है यहाँ पर, ये क्रिटिकल सिचुएशंस है। क्रिटिकल सिचुएशन हमेशा आपको इसका 90% एंड 10% ऐसा लेकर के चलो, हटा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर
फाइंडिंग द वैल्यू फॉर द ऑक्सीलेशन कंडीशंस। ठीक है, अब इसका दूसरी कंडीशन क्या देखो, H1 is lesser than H2 in what condition? If tensor force becomes further zero after velocity becomes zero। सो उस टाइम पे क्या होगा, बॉडी क्या काम करेगी, सर्कल में तो रहेगी नहीं, क्योंकि सर्कल में तभी रहती है बॉडी जब उसके अंदर क्या हो, टेंसर फोर्स है धागे के अंदर। तो हम उसको क्या काम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, इस बार H1 क्या होना चाहिए, लेसर H2 से। ठीक है, सो H2 अगेन इसकी वैल्यू देखो, कितनी वैल्यू है इसकी, जैसे U स्क्वायर ओवर, सो आई आप यहीं से देख सकते हो ना, इस जगह से इसी को उल्टा कर दीजिएगा साइन, यहीं को इसको उल्टा कर सकते हैं ना। सो आपको दूसरी कंडीशन मिल जाएगी यहाँ से। सो ये वो जनरल कंडीशन। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। मैं ये चाहता हूँ कि बॉडी इतनी ऊंचाई पर जाए कि सेमी सर्कल बन जाए। अच्छा, ऑक्सीलेशन मैक्सिमम कहाँ तक लो हो सकता है, सेमी सर्कल से पहले ही पहले ऑक्सीलेशन होगा, या मैक्सिमम सेमी सर्कल तक लो हो सकता है। अगर बॉडी देखो यहाँ पे मूव करते, आप खुद देखिएगा, स्लैकनिंग हो जाएगी इसमें, सेमी सर्कल से ऊपर जाएगी। तो मैं धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ और स्पीड बढ़ा रहा हूँ इसकी, तो होनी शुरू हो गई होगी। तो इसलिए हम लेट से दे रहे हैं, और क्या लेते हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो देखो अभी यहाँ पर अगर ये सेमी सर्कल से नीचे है ना, तो ऑक्सीलेशन विल परसिस्ट। तो ऑक्सीलेशन के लिए क्या होना चाहिए, आपका एंगल देखो ध्यान से, ये एंगल ना, कौन सा एंगल, वर्टिकल लाइन का एंगल, और ये कितना है 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल। ये एंगल क्या होना चाहिए, बहुत छोटा। ये एंगल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जब हम SHM पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें कहते हैं फॉर आइडियल ऑक्सीलेशन कितना एंगल होना चाहिए, तो 5 से 10 डिग्री होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, इतना बस ओनली। ये परफेक्ट ऑक्सीलेशन है, ये ऑक्सीलेशन नहीं है तो बहुत बड़ी मोशन हो गई। ठीक है, ऑक्सीलेशन क्या होता है, और इम्पोर्टेंट बात, ऑक्सीलेशन का बहुत ध्यान से देखो, इस पार्टिकल को मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसे यहाँ पर है, शिफ्ट हुआ, ये कितना डिस्प्लेसमेंट, लगभग लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये। जब ज़्यादा घुमाओगे तो सर्कुलर हो जाएगा, मीन्स दैट कर्व हो जाएगा। तो प्योर ऑक्सीलेशन इज दैट ऑक्सीलेशन इन विच दिस डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर एंड दिस ओनली एंड ओनली परसिस्ट फॉर 5 डिग्री टू 10 डिग्री एंगल। गुड। सो आपने कहाँ तक लिखा था लास्ट में, ये अभी उतारा नहीं ना, कंडीशन लिखी है आपने ओनली, लिखो इसमें अब आप, in order to make oscillation, in order to make oscillation by body, its speed should be 0, its speed should be 0 before reaching the higher point, and tension force in string must not be 0 before this, must not be 0 before this. If tension T in cot, T को cot में करो, if tension T becomes 0 before speed, then thread will slacken, and motion will no longer as circular. So important thing, to make the circle, tension force should be greater than 0. ठीक, now you can write let at a point where speed becomes 0,
The vertical height is h1. The vertical height is h1. Now you can note this value. यहाँ देखो, ये आप कर सकते हो। आप कौन सा, यहाँ से यहाँ तक करेगा। अभी जहाँ पर मैंने ये मार्क किया है यहाँ तक करो ये बात व्हाट्सएप। सो मैंने क्या काम किया, आई हैव यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टू गेट द हाइट एट विच वेलोसिटी बिकम जीरो। सो वेलोसिटी जीरो कर दिया फाइनल। यू आपके पास है ही कुछ, ये रहा वो आपके पास हाइट जहाँ पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो गया। यहाँ पर इसको भी कर सकते हो आप, यस आप करो इसको भी। मैं लिखा है लैंग्वेज यहाँ पे, दिस इज h2। यहीं तक करना है अभी ओनली। आप देख सकते हैं एक टॉपिक है ये, अपने आप में अकेला ही है और इसने 2 दिन लिए हैं समझने में, तो इसकी इम्पोर्टेंस आप देख सकते हो। ठीक है, अभी तो समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब इसको खुद से करोगे तो उस टाइम पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं जब खुद से समझते हैं उसको। तो आप इसको टाइम लीजिएगा समझने में खुद घर से, और ध्यान रखें इस पर टाइम देना है आपको खुद समझने में। ठीक है, फिर इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत सारे हैं। यहाँ पर ये हो गया, उससे पहले ये हुआ है। ठीक, इसलिए हम शूट भी कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो एकदम से देख लो आप उसको वहीं पर। ठीक है, यहाँ तक कर लिया आपने। अब आप लिखोगे, अब है देखो जो यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, अब है कि हमने उसको ग्रेटर और लेसर क्यों लिखा है। आप लिखोगे इसमें आप फॉर ऑक्सीलेशन ऑफ बॉडी, फॉर ऑक्सीलेशन ऑफ बॉडी speed must be 0. I have used must, yes, must be 0, just no, before, not use just, before tension force becomes 0, ये ऑक्सीलेशन की कंडीशन है। और अगर हमने इसका उल्टा कर दिया, अगर टेंशन फोर्स पहले 0 होगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेशन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, वो बॉडी वापस आ जाएगी थोड़े देर के लिए पैराबोलिक पाथ पे चल के, यूँ आएगी ना इस तरीके से। तो वो नेक्स्ट कंडीशन है। फिर वो अब उतारिएगा आप, कहाँ तक उतारना है आपको, दैट इज दिस वन। नो, ये कंप्लीट ही है यहाँ तक, है ना, ये पूरा ही है यहाँ तक। ये पूरा उतारो यहाँ पे। बातें नहीं करो, काम करो। हो गया, हो गया। अब आप लिखोगे इसमें, ये आप इसको एक स्टार बना के लिख सकते हो। ये एक एडिशन में है, इन एडिशन में। सो स्टार क्या हो जाएगा, इफ टेंशन इन थ्रेड और स्ट्रिंग, व्हाट यू कैन से, इफ टेंशन इन थ्रेड becomes 0 before speed, what will happen, सेम है ना, what will happen, पैराबोलिक पाथ होगा। then body will no longer be moved on the circular track, but
but will turn back after following a parabolic path for a while. For a while means for a short time. You can just write for a short time. For a short time. For a short time and क्या होगा उसके बाद? वो हैंग कर जाए, नीचे लटकेगी ना, है ना, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड हटाओ उसको आप. फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये कुछ तरीके से होगा. यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ देखो सभी, अगर ऐसा हुआ हो स्लैकनिंग हो गई इसमें, तो धागा थोड़ा यहाँ जाएगा पार्टिकल, क्योंकि लूज हो गया है, और कैसा होगा, जा रहा था यहाँ पे तो ऐसे जाएगा नहीं, अब क्या हो जाएगा ऐसे करके, तो ऐसे पैराबोला पे चलाना थोड़ा सा ये, और फिर नीचे आकर के इस तरीके. तो ये जो आपका पोर्शन हुआ है ऐसे जाए इस तरीके जाएगा और फिर आ जाएगा, तो ये इतने ही मोशन में तो पैराबोला में चलाना. यहाँ पे इस जगह उसको हम ऑक्सीलेशन नहीं मानते हैं. ऑक्सीलेशन की एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, एक सर्टेन टाइम बाद रिपीट करना चाहिए. ऑक्सीलेशन अपना आप एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फिनोमिना है. ठीक है, आप सोचो यहाँ पे आ गया फिर क्या ऐसे करेगा, नो, वो ऑक्सीलेशन की क्राइटेरिया ही खत्म कर दी उसने. सो उसके लिए कर सकते हो आप, यू कैन राइट H1 ग्रेटर देन H2, करो इसे H1 ग्रेटर देन H2 और निकालो. इसके लिए फॉर्मूला सेम हो जाएगा. वैसे इतना करने के बाद आप लिख सकते हो U ग्रेटर देन 2GR लेसर देन 2. यस, सो अगर इससे कम है ना वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, वो टेंशन फोर्स 0 कर देगा. ठीक है, यही है, डायरेक्ट लिखा है ना. यस, डायरेक्ट ही करो, उसमें क्या होगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसमें. सो आपको ये पता चला कैसे करा आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आर्टिकुलेशन. एसेंस ये है इस पूरे आर्टिकल का कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है, या सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में बहुत से वेरिएशंस हैं. जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन, अच्छा ये ऑल दी फिनोमिनाज आर हैपनिंग ओनली एंड ड्यू टू दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Okay, tell me, if acceleration due to gravity suddenly becomes 0, what will happen? Can we make vertical circular motion possible without presence of acceleration due to gravity? No, because G is 0, this becomes 0, everything will become 0, because in each and every formula G has some role. G है ना सभी में, देखो आप. तो पहली बात तो मोशन जो आप, अच्छा आप इसको अच्छा जी कहाँ 0 लेते हैं हम, स्मॉल जी बोलो. स्पेस में आप 0 ले सकते हो ना जी, तो वहाँ पे आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन करके देखना. सपोज करो, एक्सपीरियंस कीजिएगा, सुनो अभी ध्यान से. इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है, सुनो ध्यान से आप, इंडिया का स्पेस स्टेशन 2030 में लॉन्च करने की उसके बाद है, 2030 में आई थिंक, यस 2030 में अप्रोक्स. तो वहाँ के 4 या 6 में अब ध्यान नहीं रहा, पहले काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था इसके बारे में. कुछ पर्सन्स हैं, साइंटिस्ट आप कह सकते हो, उनको ट्रेनिंग कराई जा रही है रशिया में, पहले फ्रांस में कराई थी. और वो ट्रेनिंग इस तरीके से कराई जा रही है क्योंकि उनको लगभग 8 से 1.5-2 महीना स्पेस स्टेशन में रहना है. यह चाइना का स्पेस स्टेशन है, नासा का है. स्पेस मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे होटल वगैरह मान सकते हो आप. ठीक है, होटल नहीं, मतलब एक स्टेशन है वहाँ पे, उसके अंदर रह सकते हो, वो आके सारा काम करते हैं वहीं पे. तो वहाँ पे रहेंगे. अब उस जगह स्मॉल जी नहीं है, तो आपके अंदर के जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, दैट विल डिस्टॉर्ट, सब डिस्टॉर्ट हो जाएगी. वो ब्लड प्रेशर विल बी चेंज, विजन विल बी चेंज, सब चीज़ चेंज आएगी, हार्ट बीट विल बी चेंज. तो उनको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दिया गया है रशिया में एक वेन्यू पे, कि उनको वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए उस चीज़ की कि आपके साथ ये होगा वहाँ पे. तो वहाँ पे जी, आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे हम कहाँ फील कर सकते हैं कि जी नहीं है. जहाँ पर जितना कोई चीज़ नीचे खींचे ना, उतना ऊपर को खींचे, वहाँ पे जी 0 हो जाएगा, इफेक्टिव जी तो 0 हो ही जाएगा. सो दिस विल मे बी हैपन इन दी सीज, ओशियंस में क्या होता है, अगर डेप्थ पे जाओ तो पानी ऊपर फेंकता है, ब्यूयेंसी फोर्स, पढ़ोगे इसके बारे में नेक्स्ट टर्म में. तो ब्यूयेंसी वहाँ पे समुद्र के अंदर ट्रेनिंग कराई जाती है उनको. आपने देखे ना, आपने कुछ सैटेलाइट से मूव करते हुए पर्सन्स को देखा होगा, पानी अगर निचोड़े तो वहीं का वहीं है वो, क्योंकि जी नीचे वो खींच नहीं रहा है उसको.
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे जीरो आप मान सकते हो, वहीं पे रह जाता है। तो पर्सन भी के साथ ही वही होगा। तो आप खुद फील कीजिएगा वहाँ पे अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हो तो पहली बात तो होगी, पॉसिबल ही नहीं होगी। सुनो ध्यान से, अगर मैंने यही थ्रेड वहाँ पे इसको ऐसे किया जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो पहली बात तो ये यहाँ जहाँ इसको रोकोगे ना वहीं रुक जाएगा, ऐसे रुक जाएगा, यहाँ ऐसे रुक जाएगा, यहाँ ऐसे रुक जाएगा, ऐसे रुकेगा यहाँ पर। ये बात समझ में आ रही है? ये सुनो ध्यान से, होगा क्या वहाँ पे? पहली बात तो टेंशन फोर्स भी जीरो हो जाएगी। टेंशन फोर्स किसकी वजह से होती है? ग्रेविटी की वजह से। तो टेंशन फोर्स जीरो, तो आप खुद बताओ सर्कल कहाँ बन जाएगा? क्योंकि सर्कल बनने के लिए एक क्राइटेरिया है कि हमें टेंशन फोर्स होनी चाहिए। टेंशन फोर्स जीरो की भी कोई स्मॉल चीज़ नहीं है। सो ये फिनोमिनाज है। आप देखो किसी भी कोई भी चीज़ है उसकी इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब वो चीज़ नहीं होगी। तो इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस तब है जब जी नहीं होगा, तब क्या क्या फिनोमिना हो सकती हैं, ठीक है ना? तो वो फिनोमिना अब नहीं हो रही। तो इसकी इंपॉर्टेंस जैसे, हाँ इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है आपके 11th क्लास के लिए कि आगे जो पर्टिकुलर पीक पॉइंट्स पे ये जो वैल्यूज़ हैं फ्रैक्शंस की, एक्सप्रेशंस की, कैसे कैसे कि TH और TL और TH में क्या डिफरेंस है, √ 6 mg वगैरह वगैरह। ऑक्सीडेशन कंडीशन इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर द 11th क्लास परस्पेक्टिव, बट TL TH, ठीक है, डिफरेंस उनमें और मिनिमम वेलोसिटी और किसी पॉइंट पर वेलोसिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एनएफ इस लेक्चर के लिए, कल पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें।